So I'm repeating again. Let's say in today's lecture, हम लोग शायद रिएक्शन मैकेनिज्म पे एज पर थियरी इज कंसर्न वो शायद कंप्लीट कर ले, है ना. एज पर एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंसर्न हम लोगों ने E2 E1 पढ़ लिया था शायद, और EI पढ़ लिया है. आज कुछ E1 CV पढ़ना बाकी है हम लोगों को. Then we'll see the possibility of substitution and elimination reaction and the factor affecting substitution and elimination reaction. हम कुछ redox reactions पढ़ेंगे, कुछ acid definitions भी पढ़ेंगे आज, जिसमें कुछ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन और उस टाइप की बातें भी होंगी, है ना. रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, और मोर ऑफ लेस आज चैप्टर हम लोग कर लेंगे, है ना. आज के लेक्चर के बाद तुम लोगों को ढेर सारा असाइनमेंट भी मिलेगा, और इस वीक में मेरा एक और लेक्चर है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसमें हम लोग डाउट्स वो सब डिस्कस कर भी लेंगे. तो इस वीक में हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे, है ना. So we continue with reaction mechanism as a chapter, and in this chapter let's say the next elimination reaction जो बचा हुआ है अभी, it is E1CV. This reaction is E1CV. E1CV, as per reaction is concerned, it is unimolecular via conjugate base. Let's say E1CV means it is unimolecular via conjugate base. Now, as per this reaction is concerned, it may be written as, let's say for example, this will be, suppose H, this will be another hydrogen here. On this, let's say benzene ring is attached with NO2 as strong electron withdrawing group. It will be H, and suppose let's say Cl here. Now, if this compound is heated with alcoholic KOH, so if this compound is heated with alcoholic KOH, it can give elimination reaction, something very similar to that of dehydrohalogenation. यहाँ NO2 आ जाता, and this will be H and H, plus we have product as KCl, plus let's say another product may be H2. So again, it is typical example of elimination reaction. Further, if you see the detailed mechanism of this reaction, again ये जो alcoholic KOH है, it is ROH plus let's say KOH, and due to acid base reaction, it can be converted into, here we have concentration of, let's say you can say OR minus as a base and K plus let's say H2. So this will be the step 1 where OR minus can behave as a base. Now in the next step, let's say it will be hydrogen, another hydrogen here, hydrogen and Cl. When it is treated with OR minus as a base, so can we say this compound consists fair enough acidic beta hydrogen, as strong electron withdrawing group NO2 is also attached in benzene ring, such that the first step of the reaction involving acid base reaction, and it can be converted into its conjugate base first. जैसा यहाँ NO2 आ जाता, NO2 with negative charge on this carbon, and it will be H and Cl बन जाता due to loss of let's say ROH. So first molecule get converted into its conjugate base. ना, let's say पहले conjugate base में convert हो जाता अपने,
due to acid base reaction. And then further, let's say due to removal of Cl minus. Due to removal of Cl minus, it can convert into this alkene. So I'm repeating, as per the mechanism of E1CV is concerned, यहाँ ये जो compound है, let's say when it is treated with alcoholic KOH and heat, first it will convert into, let's say, OR minus as a base. OR minus as a base can extract the beta hydrogen first. So it is two-step reaction. जैसे जो E1CV या जो E2 होता था, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था, ये टू स्टेप रिएक्शन है. और इसका जो इवेंचुअली प्रोडक्ट है, लेट्स से, वो कुछ ऐसा एल्कीन बन जाता है ना. सर ये रेज मत करो. जो अभी वो वाला पोर्शन, सर नीचे वाला लिखना है. हाँ नहीं, नीचे वाला लिखना, वो वाला पोर्शन तो लिख लिया था ना, जो इरेज किया मैंने. हाँ सर. So let's say this may be step 1 and this may be, let's say, loss of Cl minus is step 2. Can you suggest me out of step 1 and step 2 कौन सा rate determining step हो सकता था इसमें? Step 2. Step 2, obviously जो first step है, it is typical acid base reaction. So step 2 is found to be RDS. अगर स्टेप 2 RDS है तो उसका मॉलिक्युलरिटी कितना होने वाला है? 1. क्योंकि स्टेप 2 के लिए बस एक ही रिएक्टेंट है ना. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. It is the example of unimolecular reaction, and as per kinetics is concerned, the rate of reaction can be written as certain constant, let's say K times of, you can say ये जो conjugate base produce हुआ है उसका concentration है ना, via conjugate base. So it may also written as rate equal to, let's say, K multiplied by equilibrium constant of this reaction times of let's say OR minus का concentration, या let's say OR minus का concentration multiplied by ये जो alkyl halide है उसका concentration, let's say ना. So here let's say it is benzene is connected and let's say NO2 and it is H and let's say Cl, both raised to the power 1 and 1. So obviously ये जो equilibrium constant है, it is the equilibrium constant for step 1. सर ये ओवरऑल ऑर्डर क्या होने वाला है इस रिएक्शन का? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2, है ना. So it is the example of unimolecular reaction, but its order will be 2.
So have you note down this? Yes, sir. Yes, sir. उसमें कुछ और भी स्टेटमेंट देखो लिख सकते हो. नेक्स्ट लिख सकते हो तुम लोग उसमें द प्रोडक्ट ऑफ बोथ E2 and E1 CV. द प्रोडक्ट ऑफ बोथ E2 and E1 CV is found to be identical, but they follow different mechanism. The product of both E2 and E1 CV, the product of both E2 and E1 CV is found to be identical, but they follow different mechanism. एक का जो मैकेनिज्म था वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है E1 CV का, और एक का जो मैकेनिज्म था वो सिंगल स्टेप था E2 का, बट दे फॉलो डिफरेंट मैकेनिज्म. जैसे इसमें पहले कॉन्जुगेट बेस बना, फिर एल्कीन बना. और टिपिकली ये सेडजेफ एलिमिनेशन है या हॉफमैन एलिमिनेशन है? Hoffman. ये हॉफमैन एलिमिनेशन है ना. इसमें पहले हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं और वो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, है ना. तो लिख सकते थे इट इज द एग्जांपल ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन. It is example of Hoffman elimination. नहीं, इसमें साथ में कुछ और भी लिख सकते थे. For E1 CV, for E1 CV, let's say you can say substrate should consist let's say acidic beta hydrogen. से कैसे पता चलेगा कि उसका हाइड्रोजन एसिडिक होने वाला है? बीटा हाइड्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन इसमें एसिडिक था, है ना. Conjugate base बहुत stable है इसलिए. हाँ, तो यू कैन से कॉन्जुगेट बेस इज समहाउ रेजोनेंस स्टेबलाइज. जैसे इस वाले केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज था, है ना. सो यू कैन से इट्स कॉन्जुगेट बेस its conjugate base is resonance stabilized. E1 CV वही हो सकता है जहां conjugate base resonance stabilized हो. अदरवाइज ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाता? E2 तो हो ही सकता था, है ना. So for E1 CV, substrate should consist acidic beta hydrogen and its conjugate base is resonance stabilized. जैसा if we see more examples related to this, suppose if we have this compound, it is C double bond O, and let's say bromine is attached here, and if this compound is heated with alcoholic KOH. So this is another example of E1 CV. Do you think bromine के respect में जो beta hydrogen है, it should be acidic? And in first step, it should convert into, let's say, this conjugate base having negative charge and bromine. We know ये जो negative charge है conjugate base, it is resonance stabilized, and then in the second step we have removal of bromine. So as per product of this reaction is concerned, it should be double bond and double bond in conjugation.
You can see another example here. जैसा if it is suppose CF3 and let's say CHCl2. It is CF3 and let's say CHCl2. When this compound is again heated with alcoholic KOH, यहाँ जो प्रोडक्ट बन सकता था, you know, it is CF3. It will be C minus Cl and Cl. Do you think this conjugate base is resonance stabilized due to p pi d pi back bonding of chlorine? Yes, sir. है ना, ये resonance stabilized है, and then due to loss of one fluorine, ये कुछ ऐसा बन जाना था CF2 and let's say CCl2. ये बन जाना था CF2 and CCl2. यहाँ तभी बनेगा जब कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना. So if you see another example here, suppose if it is NO2 here, strong electron withdrawing group, and suppose if it is, let's say, acetate. Again, if this compound is heated with alcoholic KOH, it is NO2, यहाँ बन जाना था OCOCH3, and we should have negative charge on this carbon. Again, this negative charge, this conjugate base is also resonance stabilized with NO2. NO2 का strong minus R effect. In the next step, let's say ये bond यहाँ आता और ये acetate ion can leave as a leaving group. So due to removal of, let's say, acetate ion, eventually this compound should be, let's say, double bond and let's say NO2. So these are the few examples of E1CV reactions. Are you getting the point? E1CV, है ना? You have conjugate base should be resonance stabilized. सर थर्ड क्वेश्चन में डाउट है सर. क्या है? सर मतलब जब एसिड बेस रिएक्शन हो गया उसके बाद तो क्लोरीन क्विट करना चाहिए था ना, तो क्लोरीन के साथ क्लोरीन क्विट नहीं करेगा. एल्कीन बनने के लिए उसके नेक्स्ट वाले कार्बन का हेलोजन जाना चाहिए, तो एल्कीन बनेगा. नहीं, यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा तो एल्कीन बनेगा भैया. सर तो फिर क्लोरीन अगर निकलता तो फिर भी हेलोजन बन सकता था ना, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड करके. किसके साथ? क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड? तुम्हें क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा? क्लोरीन एज ए नेगेटिव चार्ज एक ही बॉन्ड बनाता है बेटा. हाँ सर समझा.
further you can say let's say during E1CB during E1CB you can say it is deuterium due to E1CB deuterium exchange is observed. यार अगर इंटरमीडिएट में कहीं कार्ब एनायन बन रहा था है ना, अगर इंटरमीडिएट में कहीं कार्ब एनायन बनेगा तो जहां जहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ सकता था वहां ड्यूटेरियम आ जाता है ना. जैसा फॉर एग्जांपल इफ इट इज H COCH2 and CH2Cl. If this compound is treated with let's say it is treated with OR minus in presence of OD minus and D2O. Do you think इसका जो प्रोडक्ट बनता इवेंचुअली वो शायद ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड, this will be deuterium here and it is double bond and CH2 as a final product. So in this case ये वाला जो हाइड्रोजन था this will be let's say effectively converted into deuterium. जहां कार्ब एनायन बनता है ना, जहां कॉन्जुगेट बेस बनता, उसके हाइड्रोजन्स ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जा रहे थे in presence of OD minus and D2O. Are you getting this point? E1CB में we can have deuterium exchange, है ना? वो भी समझ में आ रहा है कि इससे वो एक ही हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस हुआ है ड्यूटेरियम से? Yes, sir. So have you note down this? Yes, sir. E1CB. हाँ बोलो. सर और कोई एलिमिनेशन रिएक्शन में ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा? क्योंकि बाकी किसी में एनायन एज ए इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा था. E1 में वी हैव कार्बोकैटायन, E2 में नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, EI में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, ट्रांजिशन स्टेट था बस, है ना. इसमें कार्बन आयन. ठीक है, तो जल्दी से पहले हम लोग कुछ रैप अप करते हैं रिलेटेड टू लेट्स से एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट. सो द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन से इट इज substitution versus elimination. Substitution versus elimination. उसमें तुम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हो, since let's say every base can also behave as nucleophile. Since every base can also behave as nucleophile and thus both SN है ना,
nucleophilic substitution and elimination reaction, you can say, take place simultaneous. है ना, since every base can behave as a nucleophile, तो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों हमेशा साथ साथ में ही होते हैं, है ना। जैसा फॉर एग्जांपल, let's say if it is CH3, it is CH2 and Cl, and when treated with OH minus, as per OH minus is concerned, OH minus can behave as base or OH minus can behave as a nucleophile also. तो यहाँ दोनों रिएक्शन फिजिबल हैं. This reaction may be, let's say, CH3, CH2 and OH बन जाता due to loss of Cl minus. And another possible reaction may be, let's say, ये बन जाता CH2 double bond CH2 plus, let's say, H2O plus, let's say, Cl minus. ये वाला जो रिएक्शन है, you can say it is SN2. और ये वाला जो रिएक्शन है, you can say it is E2. तो एक SN2 रिएक्शन हो सकता था और एक E2 हो सकता था. जैसे इंस्टेड ऑफ E2 या SN2 में हाल फिलहाल अभी सिंपल ऐसा रखने की कोशिश करता हूँ. एक लेट से SN हो सकता है और एक लेट से E हो सकता है एलिमिनेशन. Now, as per major product of this reaction is concerned, है ना, major substitution होगा या let's say elimination होगा, तो following factors, following factor affect या following factor decide major product of these reactions. तो जब भी मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो पाएगा, और जब भी मेरे पास एलिमिनेशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी होता है. जैसे जो फर्स्ट फैक्टर है, इट इज टेम्परेचर, है ना. फर्स्ट फैक्टर डिसाइड कर सकता था कि मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से बनेगा या एलिमिनेशन से बनेगा. इट इज टेम्परेचर. नाउ टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर, कैन वी से एज पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंसर्न, यहाँ एंट्रोपी चेंज नियरली कितना है? जीरो. नियरली जीरो, लेट्स से, है ना. एंड इट्स डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, है ना, सब्स्टिट्यूशन के लिए. सिमिलरली एज पर एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंसर्न, फॉर दिस एलिमिनेशन रिएक्शन डेल्टा एस कितना हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? यहाँ पॉजिटिव हो सकता है. वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर, और इसका जो डेल्टा एच है, इट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव सिंस यू हैव टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड और कुछ नए पाई बॉन्ड्स बने, है ना. So in this case, delta G of this reaction is approximately same as delta H, and in this case, delta G of reaction is delta H minus T delta S. So if you increase the temperature, substitution reaction का gives free energy बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, but
if you increase the temperature in elimination reaction, if you increase the temperature in elimination reaction, तब क्या हो रहा है वहां? एलिमिनेशन रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस हो रहा है. एलिमिनेशन रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस हो सकता था क्योंकि डेल्टा जी और नेगेटिव हो सकता था. तो टेम्परेचर के लिए एक तो हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, यू कैन से हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर let's say elimination reaction over substitution या over SN, है ना, over nucleophilic substitution reaction. तो कहीं भी अगर डेल्टा एज ए सिंबल है तो हम लोग एलिमिनेशन करवा सकते हैं, है ना, एज ए मेजर प्रोडक्ट. जैसा फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है तुम लोगों ने सब डेल्टा एस इक्वल टू 0, डेल्टा एच इक्वल टू 0 लाइक दिस. यस सर. Okay. So for example, let's say we have one of the reaction as this may be CH3 and CH2. It is CH3 CH2 Cl, and when it is treated with aqueous KOH, when this alkyl chloride treated with aqueous KOH, so इसका जो प्रोडक्ट हो जाता, this product will be CH3 CH2 and OH plus let's say aqueous KCl. टिपिकली है ना, टिपिकली ये जो रिएक्शन हो सकता था, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN. बट लेट्स से इफ वी हैव CH3, it is CH2 and Cl plus let's say it is alcoholic KOH, और ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको हम लोग ऐड कर रहे होते हैं टेक्निकली boiled alkali, means heat. इस वाले केस में लोग हीट कर रहे होते हैं, boiled alkali, है ना, मतलब high temperature. In this case the major product you can write as CH2 double bond CH2 plus KCl plus H2O as a major product. और ये जो रिएक्शन होने वाला है, it is mainly E2, ये रिएक्शन होने वाला था mainly SN2. You can say एक फैक्टर तो पक्का टेम्परेचर हो सकता है ना. So have you understood this factor? Yes, sir. Okay. So let's move to the second factor as second factor. It is, let's say, type of substrate, or reagent, let's say ना, इस reagent के साथ उस substrate का reaction है. Type of substrate or let's say reagent. जैसे उसमें एक टेबल हम लोग समराइज कर लेंगे. क्या है कि भाई इवन एट रूम टेम्परेचर, even at room temperature, you can say different type of alkyl halide,
even at room temperature different type of alkyl halide। बच्चे एक बार ये देख लो, टेबल है जो फिर समराइज करके लिखना भी। लेट्स से यहाँ सपोज वी हैव type of alkyl halide। typically type of alkyl halide है यार। alkyl halide का हम लोग रिएक्शन करा सकते थे किसी पुअर न्यूक्लियोफाइल, या मैं बोल सकता था इट इज लेट्स से वीक बेस। इसका रिएक्शन हम लोग करा सकते थे पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। इन्हीं सब का रिएक्शन हम लोग करा सकते थे गुड न्यूक्लियोफाइल बट दे आर रिलेटिवली वीक बेस। और इसी का रिएक्शन हम लोग करा सकते थे लेट्स से गुड न्यूक्लियोफाइल and they are strong base। No, one by one we can see few examples also। जैसा poor nucleophile and weak base, maybe suppose let's say it is H2O। हाँ बोलो सर, लेकिन वो पुअर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, poor nucleophile and strong base usually ऐसे typical example नहीं होते है ना। So let's say it is H2O, it is ROH and RCOH। They are relatively weaker base and poor nucleophile। Good nucleophile means let's say this may be suppose I minus, this may be Cl minus, it is bromide ion। This may be let's say Cn minus, this may be suppose RCOO minus। So you can say in सबके conjugate acid है ना, इन सबके conjugate acid बहुत अच्छे थे। So they are weaker base but they are strong nucleophile। स्ट्रॉन्ग बेस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में हम लोग ये सब लिख सकते थे इट इज OH माइनस कॉमा OR माइनस लाइक दिस। एक टेबल हम लोग ऐसा समराइज कर लेते हैं टू जस्ट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस। अच्छा, ये जो टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड हो सकते थे दिस मे बी लेट्स से 1 डिग्री। Type of alkyl halide may be 2 degree alkyl halide and type of alkyl halide may be let's say 3 degree alkyl halide। With 1 degree alkyl halide this is no reaction है। In this case mainly it is SN2 and in this case mainly it is SN2, mainly it is SN2 but let's say it is E2 with suppose अगर मेरे पास ऐसा बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो है ना, अगर मेरे पास सब बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो मेरे पास यहाँ E2 भी हो जाता है इवन प्राइमरी के साथ। सेम लेट्स से इफ इट इज 2 डिग्री, if it is 2 degree this will be mainly let's say SN1 and mainly it is SN1। तो यहाँ लेट्स से SN1 है
good nucleophile means this will be SN2 and this is E2. This will be SN1. It is SN1 and it is E2. Here, as per this table is concerned, उसका डिटेल्ड है ना, डिटेल्ड टेबल, डिटेल्ड थियरी भी मैं तुम लोग को आज भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। बट एटलीस्ट इतना टेबल तो याद रखना ही है तुम लोगों को। सर हाँ बोलो। सर E1 किसी में भी पॉसिबल नहीं है। बट E1 मेरे पास तभी होगा जब मेरे पास रिलेटिवली वीक बेस, मतलब जैसे ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ये वाला पार्ट है और इसमें मैं हीटिंग कर दूंगा ना, ये वाले पार्ट में अगर मैं हीटिंग कर दूंगा तो यहाँ पक्का पक्का E1, यहाँ पक्का पक्का E1 हो जाएगा। बट लेट्स से हम लोग हीटिंग नहीं कर रहे हैं तो E1 कहीं नहीं होगा, है ना। तो E1 हो रहा है बट मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना। जैसा हम लोग चाहते तो देखो कुछ कुछ ऐसा भी लिख सकते थे, इवन एट रूम टेम्परेचर ये होता है रफली, हम सिर्फ यहाँ मेजर प्रोडक्ट लिख रहे थे, अदरवाइज ये रफली 95% SN1 है एंड नियरली 5% E1 है ना। ऐसा ही टर्शरी वाले केस में भी नियरली 5% E1 भी है ना। हीट करते, टेम्परेचर राइज करते तो एलिमिनेशन का प्रोपोर्शन विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। हीट करने पे एलिमिनेशन का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है ना। सर तो जब तक किसी भी रिएक्शन में हीट का साइन नहीं है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है। नहीं, देखो E2 भी हो रहा है मेजर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अच्छा, इवन एट रूम टेम्परेचर, है ना, विदाउट हीटिंग। हीट कर दिया है तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन में भी प्रिफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन, है ना, और प्रोपोर्शन तो बढ़ता ही जाता है हीट करने में। So, is it clear? लिखा है सर एक मिनट, थोड़ा ये याद रखना कि भाई यहाँ ये जो बल्कियर है ना, यू कैन से यहाँ मिथाइल, इट इज मिथाइल और ये मिथाइल है ना। सो विद बल्कियर न्यूक्लियोफाइल इवन एट रूम टेम्परेचर प्राइमरी के साथ भी E2 हो जाता है ना। सर लिख लिया। लिखा? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सर वो एक लिखना था उसमें। क्या लिखना है? हाँ सर, बस वो एक लास्ट का रो नहीं लिखा था। अभी लिख लिया? हाँ सर। So let's say for example if this is, let's say suppose R O minus and Na plus,
and when this is treated with let's say R dash X या मतलब in general let's say ना R dash X without heating even at room temperature, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कौन सा होना चाहिए, SN1 की SN2? SN2 है ना. अगर ये रिएक्शन होगा तो दिस शुड बी SN2 as OR minus is strong nucleophile और ये X को यहां से फोड़ सकता था, ऐसा है ना. Such that the product of this reaction can be ROR dash प्लस साथ में ये बन जाता NaX. It is the name reaction and it is Williamson's synthesis. ना Williamson synthesis of ether. ये जो रिएक्शन है it is Williamson synthesis of ether. Now, as per Williamson synthesis of ether is concerned, अगर मुझे ether ही produce करना है, तो do you think this R dash should be 1 degree only? This R dash should be 1 degree only, and this R, let's say, maybe 1 degree, 2 degree or 3 degree. For example, suppose if we have to prepare this ether, it is CH3, it is CH3, it is CH3, and let's say it is OCH3. Suppose if you have to prepare this ether, इसमें से हम लोग एक ग्रुप को R लिख सकते थे और किसी एक ग्रुप को हम लोग R डैश ले सकते हैं ना ईथर प्रोड्यूस करने के लिए, such that you can take this type of combinations. Let's say it is CH3, this will be CH3 and CH3O minus Na plus this is let's say CH3Cl. एक तो ये कॉम्बिनेशन शायद हम लोग ले सकते थे इस वाले केस के लिए, और यू कैन टेक अनदर कॉम्बिनेशन एज लेट्स से CH3O minus Na plus it is CH3, it is CH3, it is CH3 and Cl, और यहां से ये हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं. कौन सा बैटर यील्ड देने वाला है, ब्लैक वाला कि ग्रीन वाला? ब्लैक वाला. In the case of black, this will attack as a nucleophile on this carbon, और ये Cl निकल के मस्त substitution reaction हो सकता था, है ना. Now since it is tertiary in the green वाला case, so there is no SN2 reaction is feasible. This will behave as a base, it will extract hydrogen from here, and due to removal of chlorine, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है it will be according to E2, and this should be let's say CH3C double bond CH2 and let's say CH3 plus let's say this will be nothing but NaCl plus its another product will be CH3OH as a major product. Even at room temperature we can decide कि substitution reaction होगा mainly कि elimination reaction होगा mainly, है ना. सर 1 डिग्री के लिए ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सर आपने लिखा है था कि E2 भी दे सकता है फर्स्ट वाला रिएक्शन. बेटा बिल्कुल दे सकता था, बट CH3 तो 1 डिग्री भी नहीं है यार, वो तो मतलब उसमें तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता ना बेटा. 2 कार्बन होंगे तो एलिमिनेशन होगा. हाँ ओके सर. तो मिथाइल के साथ तो कभी एलिमिनेशन होगा ही नहीं, है ना.
मिथाइल के साथ तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन होना पड़ेगा, मिथाइल क्लोराइड के साथ। अच्छा, ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि हाउ वी कैन डिसाइड कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा? हाँ सर। Okay, similar thing we can do as you can say it is, let's say, addition. सर हाँ बोलो। सर वो पिछले वाले में मेरे को सर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पहले वाले में SN1 होना चाहिए था? SN1 हाँ सर, वो मिथाइल सर क्लोराइड के साथ कभी SN1 नहीं हो सकता है। नहीं सर, उसके ऊपर वाले के साथ। तुझे ऐसा क्या लग रहा है भाई? इसमें क्या लग रहा है? कौन से वाले के साथ? सर जिसमें वो 3 मिथाइल ग्रुप है कार्बन पे। उसमें SN1 तो हो ही नहीं सकता बड़े, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो SN1 नहीं देगा ना। लेकिन टेबल में लिखा है तो था, देखो ये वाला है, ये OR माइनस, यहाँ कहीं लिखा है SN1 नहीं ना? नहीं। बहुत अच्छा बच्चा। सो इट इज एडिशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ये जो भी बच्चे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये बात तक रिपीट होता ही रहेगा, है ना? तो जैसे आगे भी हम लोग कुछ एडिशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, बस तुम लोग मुझे टेम्परेचर वाला फैक्टर समझाने की कोशिश करना बस, है ना? जैसा सपोज इफ वी हैव CH2 and CH3 suppose, and if it is Cl2, देखो यहाँ दो रिएक्शन फिजिबल हैं ना, यहाँ दो रिएक्शन फिजिबल हैं। एक है लेट्स से CH2, यहाँ Cl ऐड हो जाता और Cl यहाँ ऐड हो जाता एंड CH3। दूसरा रिएक्शन यहाँ हो सकता था, इट इज CH2 and CH2Cl plus HCl. So we'll see later on. It is the example of ये एल्कीन वाले में हम लोग देखते भी, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जो दूसरा वाला है इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस तुम लोग मुझे ये बताओ यार, लो टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन इसमें फेवर होगा और हाई टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन फेवर होगा इसमें? पैरेलली दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं। सर सेकंड वाले टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा। सेकंड वाले केस में क्या होगा? हाई टेम्परेचर। यस, इसमें एंट्रोपी चेंज नियरली 0 है, so डेल्टा H0 शुड बी नेगेटिव हियर। और इस वाले केस में डेल्टा S0 नेगेटिव है ना, एंड डेल्टा H0 विल बी कंफर्मली नेगेटिव है ना। सो टिपिकली इफ यू सी, यहाँ मेजर प्रोडक्ट बन रहा होता है अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और यहाँ अगर मेजर प्रोडक्ट बन रहा होता है अगर ये 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना। सो लो टेम्परेचर पे यू कैन हैव एडिशन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे वी कैन हैव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अच्छा, ये एग्जांपल्स क्लियर है? आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस तरह का यूज करते रहोगे? हाँ बोलो। सर वो नीचे वाला रिएक्शन एक बार फिर से समझाओ। डेल्टा नीचे वाला रिएक्शन लेट्स से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म भी समझेंगे बाद में। बट सपोज अभी ये प्रोडक्ट गिवन था, तो यहाँ स्टार्टिंग में मेरे पास 2 पार्टिकल्स थे और यहाँ भी इफेक्टिवली मेरे पास 2 ही पार्टिकल्स मिल गए, तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट वाले रिएक्शन में कंफर्मली इट विल बी एंट्रोपी का लॉस, क्योंकि 2 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बनाया है ना। तो अगर एंट्रोपी का लॉस है तो जो टी डेल्टा एस वाला टर्म है वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाता है ना, माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी से समझ लेगा ना कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कब है। आई होप ये एग्जाम्पल लिखा है। Have you note down this example? Yes, हाँ sir. सर। Okay. Now move to the next thing is depending on isomeric product. Depending on, let's say, isomeric product, any reaction can be divided into you can say can be defined as भी लिख सकते हैं ना, defined as, let's say first one is it is regioselective. Regioselective और regioselective में लिख सकते थे if out of many structural isomers, out of many structural isomer as product, out of many structural isomer as product, let's say one of them is major product of reaction. For example, if let's say A as a reactant give B and C as a possible product, and suppose B is major product here, where B and C are structural isomer. Where B and C are structural isomer. तो उस रिएक्शन को हम लोग रीजियो सेलेक्टिव बोल सकते थे, है ना। जैसा इफ यू रिमेम्बर कि भाई एलिमिनेशन होते समय वो 1 ब्यूटीन भी बन सकता था, वो 2 ब्यूटीन भी बन सकता था। तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते थे और उसमें कोई एक अगर मेजर प्रोडक्ट बन रहा था तो उस रिएक्शन का नाम हम लोग रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोल सकते थे।
Are you getting my point? Regio selective. Yes, sir. हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे, पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं सब क्या क्या है ना। Let's say apart from regio selective, सेकंड भी ऐसा आसान सा ही है। सेकंड इज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव, इट इज आउट ऑफ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स एज ए प्रोडक्ट, है ना। तो बस जहां यहाँ स्ट्रक्चरल था वहां यहाँ स्टीरियो कर लेना है। So out of many stereoisomers as a product, if one of them is the major product of the reaction, again for example A is converting to B and C, where B can be, let's say, the major product, and where B and C are stereoisomers. Where B and C are stereoisomers. जैसे सपोज किसी एक ही रिएक्शन में, है ना, सपोज किसी एक ही रिएक्शन में मेरे पास सिस एल्कीन भी बन सकता था और सपोज ट्रांस एल्कीन भी बन सकता था ना। किसी एक ही रिएक्शन में सपोज मेरे पास सिस एल्कीन भी बन सकता था और ट्रांस एल्कीन भी बन सकता था, और आउट ऑफ टू सपोज एक मेजर बन रहा है, एक माइनर बन रहा है ना, उस रिएक्शन का नाम हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव बोल सकते हैं। Are you getting? नीचे लिखा है ये सब स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना। थर्ड रिएक्शन इज, let's say you can say it is stereo specific. Stereo specific reaction. Stereo specific reaction is, let's say, if in a same reaction, if in a same reaction, let's say different reactants give different outcome. If in a same reaction different stereoisomer, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, different stereoisomer give different outcome. Different stereoisomers give different outcome. For example, in the same reaction, it is A converting to B and let's say C converting to D in the same reaction, where A and C are stereoisomers. Where A and C are stereoisomers. So if in a same reaction different stereoisomers give different outcomes,
उस रिएक्शन का नाम लेट्स से स्टीरियो स्पेसिफिक है ना। बच्चे लिखा है तुम लोगों ने ये सब? कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझ लेंगे कि क्या स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्या स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्या रीजियो सेलेक्टिव है ना? फॉर एग्जाम्पल लिखा है बेटा ये सब तुम लोगों ने अभी तक? हाँ सर। 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। So if you see typical example of stereospecific, selective and all these things, let's say for example let's say हम लोग कोई भी typically SN2 रिएक्शन देख लेते हैं ना। किसी भी SN2 रिएक्शन के लिए है ना, कोई भी typical SN2 रिएक्शन, let's say this SN2 reaction may be, suppose यहाँ bromide ion है which is going inside the surface of board, और suppose यहाँ methyl है which is coming outward, and similarly let's say we have another one as this bromine is coming outward, और यहाँ this methyl is also coming outward. If it is treated with SH minus as a nucleophile, and same if it is treated with SH minus as a nucleophile. Can you suggest me SH minus strong nucleophile है कि weak nucleophile है? Strong nucleophile. Strong nucleophile है, so it will prefer SN2 reaction, and let's say it will prefer SN2 reaction. As per SN2 reaction is concerned, it is the backside attack of SH minus. Due to backside attack of SH minus, ये ऊपर से अटैक करता और ब्रोमीन निकल जाता है यहाँ, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है इट शुड बी लेट्स से दिस ग्रुप, और यहाँ से मेरे पास SH जुड़ जाता है ना, ड्यू टू लॉस ऑफ लेट्स से ब्रोमाइड आयन, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रोमाइड आयन, सेम इन दिस केस SH विल अटैक, मतलब ये प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता था। टेक्निकली मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए थी मुझे कि ये यहाँ से अटैक करता और ये बॉन्ड टूट जाता है ना, सच दैट इन दिस केस ये तो ऐसा का ऐसा ही रहता और यहाँ SH प्लेन के नीचे चला जाता ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रोमाइड आयन। दोनों में ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ना, दोनों में ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो SN2 रिएक्शन है ना, ये जो SN2 रिएक्शन है वो दोनों में से एक प्रोडक्ट बनाता है कि दो प्रोडक्ट बनाता है? ये SN2 ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा कि दो प्रोडक्ट बनाता है? Single product. ये सिंगल प्रोडक्ट बनाता है ना, तो यहाँ भी आई कैन से इट इज सिंगल प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप, and same it is let's say single product of this type. जैसे सिंगल प्रोडक्ट मींस मैं ऐसा भी बोल सकता था कि जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप कुछ बन रहा होगा शायद, है ना, बट वो सिंगल टाइप का प्रोडक्ट है लेट्स से, है ना, दूसरा लेट्स से 0% बन रहा है सपोज, है ना, तो यहाँ डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर गिव डिफरेंट आउटकम। तो ये जो SN2 रिएक्शन है
वो स्टीरियो स्पेसिफिक है कि स्टीरियो सेलेक्टिव है? स्टीरियो स्पेसिफिक। Specific. सो ये रिएक्शन लेट्स से स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, कुछ हम लोग लिखते हैं. सो दिस रिएक्शन इज लेट्स से स्टीरियो स्पेसिफिक as well as stereo selective. Can we say अगर दूसरा वाला नेग्लिजिबल अमाउंट या जीरो अमाउंट में बन रहा है तो इट इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव? हाँ सर. जो दो पॉसिबिलिटी थे, अगर दूसरा वाला बिल्कुल नहीं बन रहा है तो ये रिएक्शन तो हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया है ना. तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है और ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी है ना. या इसमें एक और स्टेटमेंट तुम लोग लिख सकते थे क्या? एवरी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज also stereo selective. ना, जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो सारे स्टीरियो सेलेक्टिव भी होते हैं, है ना. जैसा SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी. बच्चे ये लिखा है ऐसा. हम लोग कुछ SN1 रिएक्शन का एग्जांपल भी देख लेते हैं. देखो अभी हैव यू नोट डाउन दिस? Yes, sir. Okay. So let's say if you move to the next one as let's say कोई भी टिपिकली हम लोग SN1 रिएक्शन का एग्जांपल भी देख लेते हैं ना. Let's say typically SN1 reaction. Now in this SN1 reaction suppose सेम टाइप के एग्जांपल से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं. यहाँ मिथाइल है and let's say this bromine going inside the surface of board. और सपोज यहाँ भी मिथाइल जुड़ा हुआ है ना. If it is treated with H2O as a nucleophile, as a weak nucleophile H2O, और इसी का हम लोग एक दूसरा स्टीरियो आइसोमर भी ले लेते हैं. Let's say still methyl coming outward. Yeah, you can say bromine is coming outward and here methyl going inside the surface and this as a methyl. And this is also treated with H2O as a nucleophile. So do you think दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो अलग अलग टाइप के हैं? Yes. दोनों ही रिएक्टेंट अलग अलग हैं, है ना? हाँ सर. अच्छा, do you think ये weak nucleophile है and tertiary है तो it should be SN1 and same this reaction will be SN1. अच्छा, SN1 में क्या होना था? due to loss of bromide ion, yeah you can say due to loss of bromide ion. do you think यहाँ due to loss of bromide ion ये शायद देखो कुछ ऐसा बनता है यहाँ, this and now positive charge on this carbon and this methyl is coming outward. This methyl coming outward, है ना? And do you think fortunately यहां से भी मेरे पास ये सेम ही कैटायन बनता है ना? भाई अगर एक बार ब्रोमाइड आयन का लॉस हो गया तो वो sp3 कार्बन तो sp2 कार्बन बन जाएगा, है ना? वो जो sp3 कार्बन है वो sp2 कार्बन बन जाएगा. Now onward H2O as a nucleophile. H2O as a nucleophile
ये प्लेन के ऐसा ऊपर से भी अटैक कर सकता था, और H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल ये ऐसा प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता था, सच दैट दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहां बन सकते थे। एक प्रोडक्ट यहां बन सकता था, लेट्स से जो रेड से हुआ था, दिस मिथाइल and this OH on the same side, obviously due to loss of H plus, and this methyl going inside the surface of board, और एक मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट बन सकता था, ये मिथाइल तो अभी भी बाहर ही आ रहा है, this methyl coming outward and this OH going inside the surface of board. Can you suggest me out of these two कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें? फर्स्ट रेड वाला। रेड वाला will be minor product, हाँ सर, इन्वर्टेड ग्रीन वाला will be major product। देखो थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं यार। यहाँ डू यू थिंक ये बल्कियर मिथाइल ग्रुप है ऊपर की साइड, है ना बेटा, ये बल्कियर मिथाइल ग्रुप है ऊपर की साइड, तो जब H2O ऊपर से अटैक करेगा इट विल प्रोवाइड सम स्टेरिक हिंड्रेंस। H2O को वो अटैक करेगा या H2O को रिपेल करेगा, बट यहाँ नीचे यू हैव लेट्स से सिंपली हाइड्रोजन जो ग्रीन वाले डायरेक्शन को अटैक नहीं करेगा, है ना, या ग्रीन वाले जो अटैक है उसको रिपल्सन नहीं करेगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है क्यों एक मेजर है क्यों एक माइनर है? हाँ सर। ओके, नाउ अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है क्या? नहीं सर, क्योंकि इसने दोनों स्टीरियो आइसोमर ने सेम आउटकम दिया है ना। अगर दोनों स्टीरियो आइसोमर ने सेम आउटकम दिया है तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हो सकता है। स्टीरियो सेलेक्टिव है ये? हाँ सर। हाँ सर। तो SN1 is typically stereo selective। ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सारे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन तो स्टीरियो सेलेक्टिव हैं, बट सारे स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है? हाँ सर। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना? So SN1 is only stereo selective. SN2 is both stereo selective as well as stereo specific. जी ये क्लियर है तुम लोगों को? स्टीरियो सेलेक्टिव है ना? हाँ। Okay, so let's move to the next example to just understand. Suppose if it is typically E2, if it is typically E2 reaction, E2 reaction स्टीरियो स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता है? So E2 is found to be conformally regioselective. It is found to be stereo specific and it is found to be stereo selective। ये सब होता है ना। E2 regio selective भी है, E2 stereo specific भी है एंड E2 stereo selective भी है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं।
For example, let's say suppose if we have pH, it is pH, यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है एंड Br है, सपोज है ना, यहाँ H एंड Br है। अब ये मेरे पास लेट्स से एरिथ्रियो भी हो सकता था और ये मेरे पास थ्रियो भी हो सकता था। इसके जो प्रोडक्ट देखो बन सकते थे, है ना, इसके ये सब प्रोडक्ट बन सकते थे, पीएच, CH3, this may be pH and CH3, both cis as well as trans। और साथ में देखो प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता था यहाँ, क्या, pH CH CH3 and C, it is double bond CH2 and let's say pH। अगर मेरे पास हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाए, है ना, से ये दोनों है लेट्स से सर्जप्स एलिमिनेशन, और ये वाला प्रोडक्ट बन सकता था इफ वी हैव हॉफमैन एलिमिनेशन। तो कैन वी से एरिथ्रियो या थ्रियो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देने वाले थे, मेजर प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है ना। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस एक कोई मेजर प्रोडक्ट बनने वाला था तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। आउट ऑफ सेटजेफ एंड हॉफमैन एक मेजर प्रोडक्ट होने वाला था तो ये रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव भी है। Are you getting my point? Yes, sir. तो ये समझ में आ गया अब जब सब क्या है, रीजियो सेलेक्टिव क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है। भाई लिखा भी है तुम लोगों ने? हाँ सर। Okay. Now the next topic is, let's say मैं वापस से यहाँ स्लाइड पे आ जाता हूँ। Next topic is let's say related to this reaction mechanism only, जो हम लोग थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज करते रहेंगे या थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग यूज करते रहेंगे। इट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। It is kinetic isotopic effect। अच्छा ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली कर रहे होते हैं टू प्रिडिक्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। है ना, टू प्रिडिक्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। To predict mechanism of reaction. So here we know few points as, let's say, heavier isotope, always form
always form stronger bond. भाई ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने कि heavier isotope हमेशा strong bond बनाता है? Yes, sir. Yes, sir. So let's say as per bond energy या bond dissociation energy is concerned, भाई एक बॉन्ड है मेरे पास, लेट्स से सपोज C12 एंड H, और एक बॉन्ड है मेरे पास लेट्स से C13 एंड H। इसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहने वाला है? C13H. हाँ मतलब ये, और सर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बट इफ वी हैव लेट्स से दिस एग्जांपल, इट इज कार्बन एंड H एंड कार्बन एंड ड्यूटेरियम। कार्बन ड्यूटेरियम। मतलब मैं यहाँ देखो अप्रोक्सीमेटली साइन देखो ऐसा भी लगा सकता था, यहाँ तो शायद मैं एक्सपेरिमेंटली पता ही ना कर पाऊं, इस वाले केस में मैं एक्सपेरिमेंटली पता कर सकता हूँ ना। भाई ड्यूटेरियम का जो मास है वो हाइड्रोजन का एग्जैक्टली डबल है ना। So kinetic isotopic effect is to predict mechanism of reaction. Heavier isotope always form stronger bond. अच्छा क्यों stronger bond बनाता होगा यार heavier isotope? ये तुम लोगों ने SHM पढ़ लिया है ना मुझे? सर SHM कहाँ से आया? पढ़ा है क्या? हाँ सर। पढ़ा है। तो कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते थे, कोई भी बॉन्ड में ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि दो मास के बीच में एक स्प्रिंग बंधा हुआ है ना। कोई भी बॉन्ड हम लोग ऐसा डील कर सकते थे, है ना, और ये जो बॉन्ड है किसी भी टेम्परेचर पे वाइब्रेट कर रहा होता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी था उसका फार्मूला क्या हो जाता था? 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 पाई एंड दिस k डिवाइडेड बाई म्यू, ऐसा ही होता था ना शायद। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, so can we say for higher mass, है ना, for higher heavier isotope, ये जो म्यू है, ये जो म्यू है रिड्यूस मास का वैल्यू विल बी हायर, और गिवन टेम्परेचर पे हैवियर आइसोटोप में कम वाइब्रेशन होगा, कम वाइब्रेशन होगा तो उसके बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होगी, है ना। तो ड्यूटेरियम वाले केस में रिड्यूस मास का वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा हाइड्रोजन से, बट कार्बन 12 एंड कार्बन 13 का मास नियरली सेम टाइप का ही है, तो वहां रिड्यूस मास में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, है ना। भाई ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को थोड़ा सा? हाँ सर। तो हम लोग करते क्या है, टू जस्ट प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, है ना, टू जस्ट प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हम लोग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस करके देख लेते हैं, है ना। हम लोग ड्यूटेरियम के हाइड्रोजन्स या हाइड्रोजन्स हम लोग ड्यूटेरियम से रिप्लेस करके देख लेते हैं, और देख लेते हैं रिएक्टिविटी पे फर्क क्या पड़ने वाला है ना। जैसा मैं समझाता हूँ ना, ये लिखा है बोर्ड पे, जो लिखा हुआ है अभी सब। हाँ सर। Okay, now to just predict the mechanism of the reaction, to just predict the mechanism of reaction, let's say second चीज हम लोग ऐसा लिख सकते थे, if you can say all hydrogens are replaced by, let's say, deuterium. If all hydrogen are replaced by deuterium for given molecule, then इसको मैं लिख सकता था
KIE, ये क्या है KIE? काइनेटिक आइसोटोपिक काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है ना. Then KIE is measured. KIE is measured as ratio of rate constant. Is measured as ratio of rate constant, which is, let's say, KH divided by KD. KH divided by KD means जब सारे हाइड्रोजन सी थे, या अब हाइड्रोजन की जगह लेट्स से ड्यूटेरियम है ना, तो उस रेट को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर भी पाएंगे, देखेंगे, वो समझेंगे, है ना. यहाँ दो टाइप के आइसोटोपिक इफेक्ट हो सकते थे. एक यू कैन से प्राइमरी or you can say it is 1 degree kinetic isotopic effect. Here RDS should consist. Here RDS should consist breaking of CH bond, and typically यहाँ ये जो KH is to KD का रेशियो है, it is found to be more than 2. यहाँ typically जो KH and KD का रेशियो है, it is typically found to be more than 2. जैसा मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है इस चीज को लेकर. For example, let's say in a given E2, in given E2 reaction, क्या है भाई E2 reaction? Let's say C6H5, it is CH2 and CH2 and let's say Br. It is CH2 and Br. If it is heated with alcoholic KOH, यहाँ जो प्रोडक्ट है it is found to be C6H5 CH and double bond CH2. ऐसे ये हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. और यहाँ ये जो रेट होता वो लेट्स से रेट कांस्टेंट को मैं KH लिख सकता. Here another reaction may be C6H5 and suppose if it is CD2 and CH2Br, and if this compound is heated with alcoholic KOH, this product may be written as C6H5 and CD and double bond CH2. ये जो कांस्टेंट है लेट्स से इसको मैं KD लिख लेता हूँ, रेट कांस्टेंट. बट इस वाले केस में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है एक ही स्टेप है यहाँ, तो इट इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो कैन वी से रेट डिटरमिनिंग स्टेप में CH या CD बॉन्ड ब्रेक हुआ है. कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, CH की CD? CH.
CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता, और ये जो एक्सपेरिमेंटल है इट इज फाउंड टू बी 7। इस एग्जाम्पल के लिए है ना, इस एग्जाम्पल के लिए ये KH/KD का जो रेशियो था वो 7 था, है ना। सिमिलरली जैसे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है, इट्स बी पार्ट इज दैट्स अ सेकेंडरी, you can say secondary or 2 degree kinetic isotopic effect. So here RDS should not consist. RDS should not consist breaking of CH bond. And here KH/KD का जो रेशियो है it will be confirmly less than 2. अच्छा, वो नियरली इक्वल टू 1 भी हो सकता है ना, और वो उस रेंज में भी जा सकता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली अच्छे से मेजर ही ना कर पाए, है ना। अच्छा, वो उस रेंज में भी जा सकता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली अच्छे से मेजर ही ना कर पाए, है ना। So for example, in given SN1 reaction, एक है let's say suppose CH3 and bromine when treated with H2O, यहाँ ये कंपाउंड बन जाता, it is CH3 and OH plus let's say HBr, और इसको मैं बोल सकता था KH, हाइड्रोजन है सिर्फ वहां, है ना। दूसरे वाले केस में I can take another combination of reagent as this may be suppose CD3 and bromine, and when this compound treated with H2O, ये हो सकता था KD as a rate constant, and it is CD3 and OH plus let's say HBr, और इसको मैं KD बोल सकता था। कहीं भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप में मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इस वाले केस में इट इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली 1 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो दोनों कार्बोकेटाइन बनेंगे उनका स्टेबिलिटी थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट रहेगा पक्का, है ना। उनका जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा थोड़ा तो पक्का डिफरेंट रहेगा, कार्बोकेटाइन जो बनेंगे, है ना, उनका स्टेबिलिटी। कैन वी से एक्सपेरिमेंटली अगर मुझे ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हो जाए एक्सपेरिमेंटली, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना कि आरडीएस कौन सा होता होगा, उसमें सीएच बॉन्ड ब्रेक होता होगा कि नहीं होता होगा, है ना।
तो विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हम लोग मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते थे ना, किस टाइप का मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का। समझा है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? हाँ सर। ये आएगा फिर से है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब बाद में एग्जांपल्स हम लोग कर रहे होंगे फिर से इस टाइप की चीजें देखेंगे। So have you note down this? Yes, sir. Okay. So next one. Let's say it is redox reaction. थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। Redox reactions. है ना, reduction या oxidation. For example, let's say first typically you can see reduction. The meaning of reduction is it is gain of electron for example, let's say if it is CH2 double bond CH2 and when it is treated with hydrogen in presence of nickel, palladium or platinum, ये हाइड्रोजन के एडिशन से प्रोडक्ट यहां बन जाता CH3 and CH3। स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -2 and -2 और यहाँ जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज -3 and -3। So it is the typical example of reduction reaction. It is typical example of reduction. Now suppose if you take another example here, it is double bond and double bond here and methyl connected plus hydrogen, and suppose if it is given as one equivalent only. So can you suggest me लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड पर रिडक्शन होगा कि राइट वाले डबल बॉन्ड पर रिडक्शन होगा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला क्यों होगा लेफ्ट वाले पे? जैसे हम लोग कुछ ये समझ सकते थे कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एडेड है ना। मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, so can we say electron donating group can already increase, electron donating group can already increase electron cloud density, and thus it decrease reduction potential. Reduction potential means you can say अभी के लिए हाल फिलहाल tendency for reduction. Any electron donating group can already increase electron cloud density, thus उसका और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है ना। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता तब क्या होता? इंक्रीज हो जाए, उसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है ना। सच दैट अगर ये वन इक्विवेलेंट है तो इसका जो आउटकम है वो देखो कुछ ऐसा आ जाता, इसका जो आउटकम है वो कुछ ऐसा आ जाता, इट इज मिथाइल एंड मिथाइल। सिर्फ लेफ्ट वाले पे रिडक्शन हो जाता है ना।
मुझे क्लियर है? यस सर। सर 1 मिनट। ऐसा ही जैसा ये रिडक्शन था, हम लोग समझ सकते थे एक एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन it's an oxidation reaction. For example, if it is treated with KMnO4 in presence of basic medium, क्या बोलते हैं इस रिएजेंट को? पढ़ा है ऐसा? बेयर्स रिएजेंट। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है ना? Now, as per oxidation is concerned, it is nothing but loss of electron. जैसे इसके लिए प्रोडक्ट यहां बन जाता CH2OH and let's say CH2OH. तो जो पहले -2 ऑक्सीडेशन नंबर था, now it is -1 and -1 ऑक्सीडेशन नंबर. Such that, let's say in this case, the same example, if it is treated with KMnO4 in presence of basic medium, can you suggest me कहाँ ऑक्सीडेशन होगा अभी? लेफ्ट में, राइट में? राइट में। राइट में। तो यहाँ राइट में ऑक्सीडेशन हो जाता. दिस इज मिथाइल एंड OH and it is, let's say, methyl and OH. So electron donating group can already increase electron cloud density and thus it increase tendency, it increase oxidation potential, tendency to get oxidized. It increase oxidation potential. समझा है तुम लोगों ने? हाँ सर।